یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر، پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ سرکار نے خواتین کے خلاف جرائم کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی کی ہے اختیار۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا اینٹی ہیومن ٹریفکنگ اویئرنیس کے بارے میں قومی سیمینار سے خطاب۔ اڑینا بانڈی پورہ میں پی ایم پیکیج ملازمین کے لیے ایل جی نے 224 رہائشی فلیٹوں کا کیا افتتاح۔ سیمپورہ میڈسٹری میں 525 کروڑ روپے لاگت والے کشمیر میڈیکل کالج اینڈ سپر اسپیشلٹی اسپتال کا رکھا سنگ بنیاد۔ زراعت محکمے نے کسان سمپرک ابھیان کے تحت کسانوں کے لیے 4 ماہ طویل تربیتی پروگرام کا کیا آغاز، اور ملک میں ریڈیو کنیکٹیویٹی کو فروغ دینے کے لیے وزیراعظم کل کریں گے 91 FM ٹرانسمیٹروں کا افتتاح۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ سرکار نے خواتین کے خلاف جرائم کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کی ہے، اور وہ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے افراد کو سزا دینے کی عہد بند ہے۔ وہ آج سری نگر میں خواتین کے قومی کمیشن کی طرف سے منعقدہ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ اویئرنیس کے بارے میں قومی سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر نے انسانوں کی اسمگلنگ کے چیلنجوں سے جامع اور مؤثر انداز سے نمٹنے کے لیے کچھ انمول تجاویز پیش کیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ منظم جرم کی سب سے سنگین قسموں میں سے ایک ہے، جس کے لیے تمام سطحوں پر سبھی متعلقین کی طرف سے ہمہ جہت اور ٹھوس کارروائی کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں، سول سوسائٹی گروپوں، نوجوانوں اور معاشرے کے ہر ایک طبقے کو اس مسئلے کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے متحد ہونا چاہیے اور استحصال سے لوگوں کو بچانا چاہیے، نیز کرمنل نیٹ ورک کو تباہ کرنا چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیلز کے حکام سے کہا کہ وہ نوجوان کلبوں اور سول سوسائٹی گروپوں کے ساتھ شراکت داری اور تال میل قائم کریں۔ ہیومن ٹریفکنگ کے جرم کو ختم کرنے کے لیے ٹھوس اور سنجیدہ کارروائی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ ہماری کوشش اور توجہ بچوں، خواتین، مزدوروں اور بے گھر ہوئے افراد جیسے حساس گروپوں پر ہونی چاہیے، اور اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ ان کی نشاندہی ہو اور انہیں مناسب تحفظ دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتظامیہ جموں و کشمیر کے تمام ضلعوں میں اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیلز قائم کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔ اس کے علاوہ یو ٹی کے تمام پولیس اسٹیشنوں میں 202 ویمنز ہیلپ ڈیسک بھی تشکیل دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے آنگن واڑی سنگنی اور سہیکا اسامیوں کے لیے بھرتی کا بھی اعلان کیا، جس کے لیے جلد ہی شفاف طریقے پر 4000 تقرریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اڑینا بانڈی پورہ میں آج پی ایم پیکیج ملازمین کے لیے نئے تعمیر کیے گئے 224 رہائشی فلیٹوں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ مرکزی سرکار کے عزم کو پورا کرنے اور اگلے سال تک ایسے تمام ملازمین کو رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرخلوص کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فلموں کی شوٹنگ کے لیے منفرد جگہ کے طور پر جموں و کشمیر کو بڑھاوا دینے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ سن 80 کا سنہری دور وادی میں واپس لوٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال جموں و کشمیر میں 300 فلموں کی شوٹنگ کی گئی تھی، اور اب زیادہ فلم سازوں کے جموں و کشمیر آنے سے یہاں کی معیشت مستحکم ہوگی، روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے اور خوشحالی آئے گی۔ افتتاحی رسم کے موقع پر چیف سیکریٹری ڈاکٹر اے کے مہتا اور دیگر سینئر حکام کے علاوہ پنچایتی راج اداروں کے نمائندے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ دریاستے لیفٹیننٹ گورنر نے آج سیمپورہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں کشمیر میڈیکل کالج اینڈ سپر اسپیشلٹی اسپتال کا سنگ بنیاد رکھا۔ اسے ملی ٹرسٹ دلی کی طرف سے قائم کیا جائے گا۔ افتتاحی رسم کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ یہ پروجیکٹ یو ٹی کے ہیلتھ سیکٹر میں سب سے بڑی نجی شعبے کی سرمایہ کاری میں سے ایک ہے، جسے طبی نگہداشت کی معیاری خدمات میسر رہیں گی۔ 525 کروڑ روپے مالیت کا یہ پروجیکٹ 150 MBBS سیٹوں کے ساتھ میڈیکل کالج قائم کرے گا تاکہ نوجوانوں کی امنگوں کو پورا کیا جا سکے۔ 100 بستروں والے اس اسپتال کی بدولت رعایتی شرحوں پر عالمی درجے کی صحت خدمات فراہم ہونے کے علاوہ یہ 2000 مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دستیاب کرے گا۔ منوج سنہا نے کہا کہ انتظامیہ کاروبار میں سہولت پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ خبروں کا بلیٹن آف آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔
रेलवेज और टेक्सटाइल्स की मरकजी वज़ीर मुमलिकत दर्शना जरदोश ने आज कठवा में एक जायजा मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने महकमा हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट को दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान उन्होंने दस्तकारों की तरबियत और दस्तकारी मसनूआत को बढ़ावा देने पर तवज्जो देने की अहमियत उजागर की। वजीर मौसूफा ने प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक एक मुकम्मल इको सिस्टम कायम करने पर जोर दिया, जिससे खुद इन्हिसार भारत बनाने के सरकार के निशाने को हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने दस्तकारी महकमे से ताकीद की कि वो दस्तकारों को जरूरी तरबियत देकर इस निशाने को हासिल करने के तई काम करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में रेडियो कनेक्टिविटी को फरोग देने के लिए कल 91 FM ट्रांसमीटर्स का इफ्तिताह करेंगे। 100 वाट के FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। ये ट्रांसमीटर 18 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 84 अजला में लगाए गए हैं। ट्रांसमीटरों की तौसी पर खुसूसी तवज्जो ख्वाहिशमंद अजला और सरहदी इलाकों में कवरेज को बढ़ाने पर दी गई है। जिन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में FM ट्रांसमीटर नस्ब किए गए हैं उनमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और लद्दाख शामिल हैं। ऑल इंडिया रेडियो की FM सर्विस की इस तौसी के साथ 2 करोड़ इजाफी लोग जिनकी रसाई मीडियम तक नहीं थी, अब इसका अहाता किया जाएगा। इसके नतीजे में तकरीबन 35,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में कवरेज की तौसी होगी। हुकूमत मुल्क में FM राबितों को बढ़ाने के लिए पुरज़म है। वज़ीर-ए-आज़म इस अहम किरदार पर पुख्ता यकीन रखते हैं जो रेडियो अवाम तक पहुंचने में अदा करता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात प्रोग्राम शुरू किया है जो अब अपने तारीखी 100वें किस्त के करीब है, ताकि वसीतर मुमकिन सामीन तक पहुंचने के लिए मीडियम की मुनफरिद ताकत को बरोए कार लाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म के रेडियो प्रोग्राम मन की बात का तारीखी 100वां शुमारा इस महीने की 30 तारीख को नशर हो रहा है। और इंडिया रेडियो वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम में से चुनिंदा इक्तबासात पेश करता आ रहा है। इस खुसूसी सीरीज के तहत आइए आज मन की बात के 93वें किस्त से ली गई ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने साइन लैंग्वेज की अहमियत के बारे में जिक्र किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी न किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। ज़राई पैदावार महकमे ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जम्मू और कश्मीर के किसानों के लिए आज से 4 माह तवील तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया। किसान संपर्क अभियान के तहत ये प्रोग्राम 264 जगहों पर मुनाकिद किया गया और आज पहले दिन इसमें पूरी यूटी के तकरीबन 14,000 किसानों ने शिरकत की। ये तरबियती प्रोग्राम हर हफ्ते में पहले 3 दिन मुनाकिद हुआ करेगा। इस बड़ी पहल को जो आज से शुरू हुई को 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा और इसमें सभी जिलों की तमाम पंचायतों को कवर किया जाएगा। ये तरबियती प्रोग्राम 31 अगस्त 2023 को इख्तिताम पजीर होगा। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने हज 2023 के लिए आज़मीन की तरबियत का शेड्यूल जारी किया है। हज कमेटी ने मनासिक हज के बारे में जिलावार तरबियती प्रोग्राम शेड्यूल मुश्तहर किया है।
श्रीनगर जिले के आज़मीन के लिए 2 मई से 7 मई तक हज हाउस बेमिना में मनासिक हज की तरबियत दी जाएगी, जबकि अनंतनाग जिले के लिए 29 अप्रैल से 2 मई तक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद होगा। बांडीपुरा जिले के आज़मीन के लिए 29 अप्रैल, जबकि बारामुल्ला जिले के आज़मीन के लिए 29 अप्रैल से लेकर 2 मई तक तरबियती शेड्यूल का इनेकाद किया जाएगा। बड़गाम में युकुम और 2 मई को, जबकि गांधरबल में 1 मई को इस तरह की तरबियत दी जाएगी। कुलगाम जिले के आज़मीन को 29 अप्रैल और युकुम मई को मनासिक हज की तरबियत दी जाएगी। पुलवामा जिले में 3 और 4 मई को और शुपियां जिले में 2 मई को मनासिक हज की तरबियत दी जाएगी। केबल कार हुक्काम ने फर्जी टिकटों पर गंडोला की सवारी की कोशिश करने के लिए 11 सयाहों और एक मकामी गाइड को पकड़ लिया। जेएंडके केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि ये सयाह कोंगडूरी से गंडोला की सवारी करने की कोशिश कर रहे थे, ताहम गुलमर्ग गंडोला के चौकस अमले ने उन्हें पकड़ लिया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि जाली टिकटों पर गंडोला की सवारी करना एक काबिल सजा जुर्म है। शुक्राना रमज़ानुल मुबारक और शुक्राना ईद उल फित्र के सिलसिले में आज श्रीनगर के तारीखी खानकाए मोअल्ला में एक रूह परवर सीरती मजलिस का इनेकाद किया गया। इस सीरती मजलिस में जमीयत हमदानिया के सदर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने वाज़ तबलीग फरमाते हुए रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फित्र की फजीलत पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से कबल 50 लाख पार्टी वर्करों से वर्चुअल वसीले से खिताब किया। कर्नाटक में पोलिंग अगले महीने की 10 तारीख को होगी। बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी ने बीजेपी वर्करों को तजावीज़ दी और पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की खातिर उनकी हौसला अफजाई की, क्योंकि रियासत में चुनाव मुहिम अपने अरूज पर है। वज़ीर-ए-आज़म ने बीजेपी वर्करों से कहा कि हर बूथ पर उनकी मेहनत से बीजेपी रियासती असेंबली इंतखाबात में रिकॉर्ड तादाद में सीटें हासिल करेगी। हुकूमत ने कहा है कि तकरीबन 3,500 भारतीय शहरियों और 1,000 भारत नजाद अफराद की लड़ाई से मुतासरा मुल्क सूडान में फंसे होने का अंदेशा है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वाट्रा ने कहा कि सूडान में ज़मीनी सूरत हाल अब भी बहुत ख़राब है और इस महीने की 15 तारीख से जब ये लड़ाई शुरू हुई तब से भारत मुस्तकिल इस पर नज़र रखे हुए है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र और बरतानिया के अपने हम मनसबों से सूडान में जारी बचाव मुहिम के सिलसिले में बातचीत की है। ख़ारजा सेक्रेटरी ने कहा कि वहाँ फंसे शहरियों से राबता कायम करने के लिए सूडान के साथ नेटवर्क कायम किए गए हैं। दरियासना 72 घंटे की जंग के बावजूद सूडान के मुख्तलिफ हिस्सों में लड़ाई अब भी जारी है। फजा में जंगी तैयारों के साथ राजधानी और दीगर शहरों में बम धमाकों और गोलीबारी की आवाजें अब भी सुनी जा सकती हैं। इस दौरान सूडान की फौज ने कहा है कि उनके सदर जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान ने मजीद 72 घंटों के लिए जंगबंदी में तौसी के एक मंसूबे को इब्तिदाई मंजूरी दी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को तकरीबन 11 घंटों के बाद आज सुबह आमदरफ्त के काबिल बनाया गया। हमारे नुमाइंदे ने बताया है कि शालघड़ी बानीहाल में जबरदस्त बारिशों के सबब कल शाम पसियां और मिट्टी के तूदे गिराने की वजह से शाहरा पर 11 घंटे के लिए ट्रैफिक की नकल हमल में रुकावट पड़ी थी और आज सुबह मुतल्लिका एजेंसी के एहलकारों ने शालघड़ी में मलबा हटाने के बाद 10 बजे के करीब शाहरा को बहाल किया, जिसके बाद बानीहाल रामबन के दरमियान दरमांदा हुई लगभग 1800 गाड़ियों को अपनी अपनी मंजिलों की तरफ जाने की इजाज़त दी गई। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बेशतर मकामात पर हल्की से औसत दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.7 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।